Hello, my dear student. Welcome to NCERT Reader. This is magnetic field chapter in which we are going to discuss now about the JEE Advanced old PYQs. In this PYQ series, it will be starting from the old and the last, it is 23. We'll be having JEE Advanced question discussion in this whole video. But the video may be, you will be getting the video in part wise it is. So this is the first video series where you will be having the magnetic field previous year question, which is asking JEE Advanced. So let's have a look of the first question, which I consider here. This is a very good question in with respect to the, if you consider here, the electric field and the magnetic field present over there. And in that situation, what will be the magnetic field concept and electric field concept when the charged particle is there and it is moving by that time. So let's have a look of the question. It is mentioned to you that a proton moving with a constant velocity passes through a region of a space without any change in its velocity. If E and B represent the electric and magnetic field respectively, then the region of the space may have. So this is a very good question regarding the regarding the electric field and magnetic field basic concept, all about the force acting on the charged particle when the electric field and magnetic field are there. So how we can think in this one? So it is asking you, let's suppose I am considering a proton over here. This proton is having the charge q and it is moving with velocity v, and it enters a region in which we have electric field and the magnetic field. So when the electric field and magnetic both are present over there, then you can see what will be the forces over there. So how it is, the question mentioned that the charged particle is having without change in the velocity. So if it is said to you without change in velocity, it means that what is the meaning of without change in velocity? It means that the speed and the speed and the direction both are constant over there. So if a speed and direction both are constant, means it is not getting deviated with due to the magnetic field and the electric field present. So how it will be possible? So when we have electric field is zero and a magnetic field is also zero, we don't have any field over existing over there, both are zero. In that situation, we can say that the charged particle, when it enters the region where no electric field and magnetic field is there, it will continuously moving with the same velocity. The velocity is not changing the speed and changing the direction. That is the meaning of velocity. यहाँ पे velocity है, इसमें speed factor एक है और speed and direction, इस दोनों में से कोई भी factor change नहीं करेगा, तभी हम बोलेंगे कि velocity में कोई changes नहीं आ रहा है. तो ये तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो हो जाए. ये कंडीशन सही है, ठीक है. दिस क्वेश्चन इज मेनली मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट. सो दूसरा ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड इज not zero. So this is the second case when it is given to you that electric field is zero and magnetic field is not zero. क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना रहे और तब भी जो है चार्ज जो प्रोटॉन है यहाँ पे वो अनडेविएटेड हो जाए? यस, ऐसा हो सकता है एक कंडीशन में, जिस समय की जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो अगर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो इस पे फिर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नहीं लग पाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है और मूविंग चार्ज पार्टिकल इट इज क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट. और अगर दोनों पैरेलल हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर अगर पैरेलल हो गया तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है. तीसरा है आपका थर्ड ऑप्शन वी आर हैविंग हियर, it is electric field is not zero and magnetic field is zero. तो अगर ऐसा केस होगा तो क्या चार्ज पार्टिकल जो है वो विदाउट चेंज इन वेलोसिटी मूव कर सकता है क्या? तो इस केस में आप देखिए कि मैग्नेटिक फोर्स के जीरो होने के कारण से इस पे मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगा, लेकिन जिस रीजन से चार्ज पार्टिकल गुजरा इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं लगेगा. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक वहां पे है, इलेक्ट्रिक जीरो नहीं, इट मींस दैट कि जो चार्ज पार्टिकल है उस पे एक फोर्स लग जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगा
और वो फोर्स होगा चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर उसी के डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में इस पे जो है फोर्स लगेगा। तो यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अगर यहाँ पे लग जाएगा तो इसके कारण से हमारे पास एक एक्सेलरेशन बिल्ड हो जाएगा, और वो एक्सेलरेशन होगा जो QE डिवाइडेड बाय m, और इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। और इसके कारण से क्या होगा कि इसका वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहें तो इसके पास जो वेलोसिटी एट एनी जनरल टाइम t अगर लिखेंगे तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगा प्लस जो एक्सेलरेशन है वो होगा और t, क्योंकि एक्सेलरेशन है इससे क्या होगा कि वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएगा। तो मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी विल बी देयर, और चेंज इन वेलोसिटी अगर होगा तो ये पॉसिबिलिटी केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी आपका जो है ये वेरिएबल हो गया। और अगर वेरिएबल हो गया तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। द फोर्थ ऑप्शन वी आर हैविंग डी, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है, क्या इस पॉसिबिलिटी इस केस में ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रह जाए, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो, वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाए? तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है एक केस में कि चार्ज पार्टिकल पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जिधर फोर्स लग रहा होगा, अगर हम इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स लगा देते हैं और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगा देते हैं, यू V क्रॉस B हो जाए, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर अपने आप को बैलेंस कर ले तो इस पे नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो इसके कारण से हम बोल सकते हैं कि एक्सलेशन जो होगा सिस्टम में, यानी कि पार्टिकल चार्ज पार्टिकल पे, वो जीरो हो जाएगा। और एक्सलेशन के जीरो होने के कारण से हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इट विल बी यूनिफॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड केस, जिस समय कि आपको दोनों फील्ड रहेगा और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट अगर करना होगा तो ये सारे रिक्विजिट हो सकते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन जो है A, B और D होगा जो कि करेक्ट होगा। ये जेई में 85 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This second question you can see a particle of charge plus q and a mass m moving under the influence of the electric field, जो कि EI डायरेक्शन में, यानी कि x के तरफ जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के, B जो है ये आपको पॉजिटिव z डायरेक्शन में, यहाँ पे देख रहे हैं कि B के डायरेक्शन में लिया गया है। फॉलोड ए ट्रेजेक्टरी फ्रॉम P टू Q, P पॉइंट यहाँ पे है और Q पॉइंट यहाँ पे है। इस ट्रेजेक्टरी पे जो है चार्ज पार्टिकल फॉलो हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड x में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में है। ठीक है, द वेलोसिटी एट P एंड Q आर, वेलोसिटी P पे जो है VI है, और जो यहाँ पे Q पे हो रहा है वेलोसिटी वो -2 एंड J डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव ऑफ -2 VJ। माइनस का मतलब यहाँ पे है कि Y डायरेक्शन के नेगेटिव डायरेक्शन में ये लग रहा होगा। Which of the following statement is are correct? So this is also more than one choice question. It has been asked in 1991. अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, दूसरा है रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पूछ रहा है आपको P पे क्या होगा। रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, यानी कि ऑप्शन बी और सी में से कोई एक ही करेक्ट होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और ऑप्शन डी रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ ऑफ द फील्ड्स एट Q इज जीरो। तो इन चारों ऑप्शन के लिए सबसे पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड EI। और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लग रहा है ये जेड डायरेक्शन में है, जिसका यूनिट B और डायरेक्शन K है। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे P पॉइंट पे इंटर कर रहा होगा तो P पॉइंट पे वेलोसिटी किधर की तरफ है, P पॉइंट पे वेलोसिटी क्योंकि x डायरेक्शन में एंड दैट इज VI, ये आपको दिया गया है। तो इसके कारण से अगर हम फोर्स इस पे देखते हैं तो फोर्स जो लग रहे होंगे, यानी कि ये चीज तो हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो वर्क डन होगा वो तो हमें मिल जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ लगाते हैं तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स
इन दोनों के कारण से जो होगा इट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच में हम इसको लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हाफ चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो m है, और v पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी है, -2v इसका मैग्नीट्यूड है। तो -2v इसका वेलोसिटी, इसका स्क्वायर और माइनस ऑफ v स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पॉइंट p एंड p। अब ये चीज हम जान रहे हैं कि वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। जो जब भी मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा तो फोर्स जो है परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट पे, जिसके कारण से यहाँ पे आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड के कारण से ये वर्क डन नहीं होगा। यहाँ कंडीशन कैसा है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में दे रखा है और जो वेलोसिटी है ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो वर्क डन हो रहा है वो नहीं होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स वी आर हैविंग द वर्क डन। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में कितना हो रहा है। तो इनिशियली ये P पॉइंट पे था, अभी Q पॉइंट पे, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका 2a हो रहा है। तो दैट मीन्स इट इज 2a, एंड दिस विल बी, यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ m और v स्क्वायर, यहाँ पे 4v² माइनस v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3v²। तो यहाँ से आपको आ गया हाफ m 3v²। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दिस विल बी, यहाँ पे 3 है, m है, तो इट इज 3m डिवाइडेड बाय यहाँ से 2a, और यहाँ 2, ये 4a हो गया, और यहाँ चार्ज q है तो चार्ज q आ जाएगा, और इसमें फिर v² लग जाएगा। सो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3/4 mv² बाय QA, 3/4 mv² बाय QA। तो ये हमें मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 3/4 mv² डिवाइडेड बाय QA हो रहा है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो ऑप्शन में दिया गया वो यही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं ऑप्शन बी पे कि रेट ऑफ वर्क डन, rate of work done by the electric field at point P is this one। तो rate of work done जो है P पॉइंट पे अगर हम लोग देखें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण से तो कोई वर्क डन हो नहीं रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से रेट ऑफ वर्क डन भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऑप्शन इट इज व्हिच इज करेक्ट हियर। द सेकंड पार्ट इसमें जो मेंशन कर रहा है कि रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो रेट ऑफ वर्क डन का मतलब है पावर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से वो क्या होगा। तो पावर जो होता है ये वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम होता है, दैट इज व्हाट वी कैन से इट इज पावर। तो जो किस रेट से यहाँ पे हो रहा है कि पी पॉइंट पे क्या होगा, तो पी पॉइंट पे या पावर को हम लोग दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा और जो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग ले देते हैं तो दैट इज ऑल्सो वी कैन से दैट। अब ये फोर्स कौन सा लेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पी पॉइंट पे क्या लग रहा है, तो इस पे चार्ज क्यू है, और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, इट इज EI। अब इसका डॉट करेंगे किसके साथ, जो वेलोसिटी है पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है v, एंड इट इज इन द I डायरेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों के कारण से यहाँ पे आ जाएगा इट इज Q, V एंड E आ जाएगा। E के जगह पे हम लोग यूज कर लेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया है। सो इट विल बी, दिस इज व्हाट वी कैन से, यहाँ पे V और QE, यानी इस वाले टर्म में ये हो जाएगा 3/4, एंड इट इज mv³ हो जाएगा, ऊपर में mv² था फैक्टर यहाँ पे, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग mv²। और फिर नीचे में जो है आपका यहाँ से Q इंटू ए फैक्टर है, और यहाँ पे जो हमारे पास है वो Q इंटू ई है, तो ये और ये कट जाएगा। सो फाइनली रिजल्ट व्हाट वी आर हैविंग इज 3/4 mv³ डिवाइडेड बाय इट इज ए, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, सॉरी ई के जगह पे हमने इस पूरे टर्म को लिख लिया है, तो यहाँ पे 3/4 mv³ इंटू क्यू, ई नहीं आएगा, ई यहाँ पे हमने लिख लिया है। ई का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, सो इट इज 3/4 एंड mv³/a, क्या ऐसा है 3/4 mv³/a, तो यानी कि बी ऑप्शन भी हमें मैच हो रहा है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें वही स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये सही नहीं होगा। अब लास्ट में रेट ऑफ वर्क डन बाय द बोथ ऑफ द फील्ड्स एट Q इज 0। तो बोथ ऑफ द फील्ड्स एट Q पे अगर हम लोग देखें तो दिस इज
ऑप्शन फोर्थ वी आर हैविंग, इसको चेक कर लेते हैं। तो जो रेट ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा पी पे, और जो रेट ऑफ वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड का होगा पी पे, इन दोनों का जो रेट होना चाहिए ये किसके बराबर होगा, यही हमें निकालना है कि ये कितना होगा, यही निकालना है। तो जो रेट ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से हो रहा होगा कहाँ पे, क्यू पे, क्यू पे। तो क्यू पे फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और क्यू पे जो वेलोसिटी वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो रेट ऑफ वर्क डन हो रहा होगा क्यू पे वो मिल जाएगा, और जो रेट ऑफ वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड के कारण से होगा कहाँ पे, क्यू पे चाहिए, ये हमको एट क्यू चाहिए। तो क्यू पे हम जो है यहाँ पे क्यू पे लो या पी पे लो या कहीं भी लो, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से रेट ऑफ वर्क डन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन हो ही नहीं रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, तो इट विल बी जीरो। तो दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू पे लग रहा है वो क्या लग रहा है, तो चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है, इट इज ई आई। और जो मैग्नेटिक जो क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास है, इट इज माइनस ऑफ टू जे, यहाँ पे जो है आपको सॉरी टू वी, एंड देन इट इज इन जे डायरेक्शन। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आई और जे का डॉट अगर हम लोग निकालते हैं तो इट इज बोथ आर परपेंडिकुलर, सो इट विल बी जीरो। तो दैट मीन्स कि जो ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है ये भी हमें करेक्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन ए, बी एंड डी है वो करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन 91 में पूछा गया है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस एंड O2 प्लस ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी पास थ्रू द रीजन इन व्हिच देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the velocity. The masses of H plus, helium plus and O2 plus are 1 AMU, 4 AMU and 16 AMU respectively. Then इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, करेक्ट होगा। तो जो जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल आपको मैग्नेटिक फील्ड में पास करेगा जिस समय की वेलोसिटी हमारे पास परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस केस में जो है जिससे ही मैग्नेटिक फील्ड जोन में आएगा चार्ज पार्टिकल, इस पे जो है एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी के एक फोर्स लगेगा, एंड जिसके कारण से ये जो है आपको यहाँ पे डेविएट करेगा जो ये फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से यानी कि फोर्स जब भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फोर्स तो हम लोग जानते हैं निकालने के लिए इट इज क्यू वी क्रॉस बी, इसके बेसिस पे हमें फोर्स मिल जाएगा। और फोर्स क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने के कारण से क्या होगा कि इसका डायरेक्शन जो है हमेशा बदल रहा होगा, तो पाथ जो है हमें सर्कुलर मिल जाएगा। और पाथ सर्कुलर मिलने के कारण से हम लोग उसका रेडियस निकाल सकते हैं कि जो इस पे एम बी स्क्वायर बाय आर होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो मैक्सिमम फोर्स इस पे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज क्यू वी। और यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, इट इज एम वी बाय क्यू वी। और जब रेडियस आपको मिल रहा है, एम वी का मतलब है मोमेंटम, क्या मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे चार्ज पार्टिकल जो भी दिए हैं हाइड्रोजन प्लस, हीलियम प्लस, NO2 प्लस, इसके काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो यहाँ तो हमें मोमेंटम मिला है, तो मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं 2m k एंड डिवाइडेड बाय क्यू बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस को काइनेटिक एनर्जी से बोला जाए, रिलेट किया जाए, और काइनेटिक एनर्जी सारे चार्ज पार्टिकल हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और O2 प्लस का अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, तो इसमें जो फैक्टर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो यानी कि रेडियस जो मेनली डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस जो है मेनली डिपेंड कर रहा है यहाँ पे √m डिवाइडेड बाय क्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे रेडियस निकालना हो हाइड्रोजन प्लस का, और इसका रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं हीलियम प्लस का, और इसका रेडियस का रेशियो निकालते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन का दिया हुआ है, इट इज O2 प्लस। तो यानी कि O2 प्लस का अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, तो हाइड्रोजन प्लस का यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है, इट इज 1, तो ये √1 हो गया। हाइड्रोजन प्लस में जो है इसमें चार्ज कितना हो रहा है, तो चार्ज जो है इस पे जो प्रोटॉन का चार्ज है वो होगा QP हो जाएगा। फिर इसमें जो है हीलियम प्लस में अगर हम बात करते हैं तो हीलियम प्लस का जो मास दिया हुआ है, इट इज 4 गिवन टू यू। और इस केस में जो हीलियम प्लस का हम लोग चार्ज रखेंगे, इसमें चार्ज कितना है, तो हीलियम नॉर्मली आप जानते हैं कि हीलियम 2 और 4 होता है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाएगा तो इसके पास जो है आपको हीलियम यहाँ पे प्लस बोलेंगे इसी को, तो दैट मीन्स कि इसके पास जो प्रोटॉन है वो तो 2 है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन जो है 1 है, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है, तो दैट मीन्स इस पे चार्ज फिर से QP होगा।
और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका जो मास दिया हुआ है इट इज 16 AMU दिया हुआ है, और जो चार्ज ऑक्सीजन पे O2 प्लस पे हम बोलेंगे तो O2 प्लस पे कितना चार्ज होगा। तो नॉर्मली अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये जो है आपको 8 और 16 होता है। तो दैट मीन्स कि इसमें 8 प्रोटॉन होगा और 8 इलेक्ट्रॉन होगा, जिस समय ये एटम फॉर्मेट में होगा। लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका होगा तो इसके पास जो है आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण से 8 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ओवरऑल इसमें जो चार्ज कंसीडर्ड होगा वो 2 जो है चार्ज प्रोटॉन का कंसीडर्ड होगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो 2 QP का आ जाएगा। तो इसमें देखिए कि क्यू सब में जो है सेम है, तो QP को हम लोग रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो दैट मीन्स की जो रेडियस का रेशियो आ रहा है इट इज 1:√4 का जो है 2 आ जाएगा। और यहाँ से √16 है तो ये 4 आएगा, 4/2, तो इट विल बी 2 ओनली। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हीलियम प्लस है और जो O2 प्लस है इसका रेडियस रेशियो अगर सेम है तो इस पे जो डेविएशन हो रहा होगा वो भी सेम ही होगा। और सबसे ज्यादा डेविएशन इसमें, अगर सबसे कम डेविएशन कहें तो किसका हो रहा है, जो हाइड्रोजन प्लस का है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, हाइड्रोजन प्लस विल बी डिफ्लेक्टेड मोस्ट। तो जिसका रेडियस छोटा होगा वो क्या डिफ्लेक्टेड मोस्ट होगा। यहाँ पे रेडियस को अगर आप रिलेट करते हैं फोर्स से तो फोर्स जो होता है इट इज mv²/r, क्योंकि यहाँ पे स्पीड फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, स्पीड फैक्टर जो आपका है वो सेम है। तो फोर्स जो है वो इनवर्स रेशियो टू आर है, यानी जिसका रेडियस छोटा होगा उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। दैट इज व्हाट वी कैन से, उस पर ज्यादा डेविएशन होगा, उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो फोर्स इनवर्सली रिलेटेड टू रेडियस है। तो यहाँ पे H प्लस विल बी डिफ्लेक्टेड मोस्ट। क्या H प्लस का रेडियस सबसे छोटा है, तो रेडियस वाइज अगर हम देखें तो रेडियस वाइज H प्लस जो होगा इट इज इट इज लेसर देन द रेडियस ऑफ हीलियम प्लस। एंड हीलियम प्लस का जो है रेडियस हो रहा है ये O2 प्लस के बराबर हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहा है। लेकिन ये जो है हाइड्रोजन प्लस का जो रेडियस होगा ये सबसे छोटा होगा, तो इस पे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। यानी कि जो पहला ऑप्शन हमारा है डिफ्लेक्टेड मोस्ट, ये करेक्ट है। O2 प्लस विल बी डिफ्लेक्टेड मोस्ट। तो इसके बेसिस पे जो है आपका ये मोस्ट नहीं होगा, ये तो कम हो जाएगा। अब इस केस में हीलियम प्लस और O2 प्लस विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली, क्योंकि रेडियस जो है इन दोनों का सेम है। तो रेडियस सेम होने के कारण से क्या हो जाएगा, इसका रेडियस अगर सेम होगा तो उस पर सेम फोर्स लग रहा होगा। तो सेम फोर्स लगने का मतलब है कि उसका डिफ्लेक्शन जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन 2 को जो है, ये 3 को जो है चूज कर सकते हैं। ऑल विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली, तो ऑल तो इक्वली हो नहीं रहा है, तो यानी यहाँ पे A और C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिस इज, ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m and charge q मूविंग विद द वेलोसिटी v enters the region 2 normal to the boundary as shown in figure. Region 2 has a uniform magnetic field B perpendicular to plane of paper and the length of the region 2 is L. अब इसका जो लेंथ है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है ये L है। तो उस केस में हमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइसेस। तो जब भी चूज द करेक्ट चॉइसेस हो और या नहीं तो वो MCQ हो, मोर देन वन वाले क्वेश्चन हो, तो इसमें सोचना जो है हमें क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन कैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है वो तो क्लियर हटाता नहीं। तो जब भी हमें मोर देन वन रहे तो हम लोग ऑप्शन को पहले पढ़ेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है और उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस वन। पार्टिकल एंटर्स रीजन 3 only if its velocity v is greater than this one। यानी कि अगर 3 रीजन में पार्टिकल इंटर करेगा तो ये तब इंटर करेगा जब वेलोसिटी का वैल्यू, यानी कि आपको ये चीज समझना है कि अगर हमें रीजन 3 में आना होगा, चार्ज पार्टिकल अगर आएगा रीजन 3 में जाएगा तो इसका अगर रेडियस का वैल्यू इससे छोटा हो जाए तो ये तो टर्न ले लेगा, L से छोटा हो जाए। यानी रीजन 3 में जाने के लिए क्या होना चाहिए कि रेडियस का वैल्यू जो होना चाहिए ये ग्रेटर हो जाए इससे L से, रेडियस का वैल्यू ग्रेटर हो जाए L से, तो ये चला जाएगा रीजन 3 में। तो फॉर रीजन 3 क्या होना चाहिए, फॉर रीजन 3 यानी कि रीजन 3 में ये जाएगा तभी जाएगा जब रेडियस हमारा चार्ज पार्टिकल का रेडियस क्या हो जाए, L से बड़ा हो जाए, तभी ये रीजन 3 में जाएगा। रेडियस क्या होता है, इट इज mv/qb। तो mv/qb का वैल्यू क्या होना चाहिए, L से बड़ा होना चाहिए, यानी v का वैल्यू क्या होना चाहिए, qbl/m। इससे अगर बड़ा होगा तो क्या ये रीजन 3 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि हमने r को बड़ा कर दिया है लेंथ से जो रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा।
तो इस केस में हमें क्या लेना है कि v का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्यू बी एल बाय एम होना चाहिए। यानी पहला रीजन 3 में इंटर करेगा ओनली इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर, यानी ये करेक्ट है। पार्टिकल इंटर्स रीजन 3 ओनली इफ वेलोसिटी, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये गलत हो गया। पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल इन रीजन 2 इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस। अब पाथ लेंथ का मतलब क्या है, पाथ लेंथ का मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल आपको ये कर रहा है, जो एक्वायर कर रहा होगा, पाथ लेंथ इसका मैक्सिमम तब हो पाएगा जब ऐसा हो कि ये चार्ज पार्टिकल इंटर किया इस रीजन में और ये कंप्लीट जस्ट टच करते हुए यहाँ से यहाँ निकल जाए, तो पाथ लेंथ इसका सेमी सर्कुलर होगा। ये इससे बड़ा पाथ लेंथ नहीं बना सकता है इस रीजन में। क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि चार्ज जैसे इंटर किया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे ही बाहर निकलेगा, तो इसका मैक्सिमम पाथ लेंथ क्या होगा, ये सेमी सर्कुलर होगा। इससे कोई भी और पाथ अगर आप निकाल पाते हैं तो वो पाथ लेंथ जो होगा वो इससे छोटा ही होगा। आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्या ये इसमें कंप्लीट सर्कुलेट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड जोन में। तो जब हम रेडियस को कोरिलेट कर रहे हैं किससे, इसके लेंथ से, तो कभी कंप्लीट सर्किल बना ही नहीं पाएगा। कभी कंप्लीट सर्किल तो तब बनाएगा जब रेडियस जो है आपका वो इसका मतलब डायमीटर जो हो जाए वो कंसीडर टू लेंथ हो जाए, तभी तो ये कंप्लीट सर्किल बनाएगा। और अभी क्या है, हम लोग रेडियस और लेंथ को इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट सर्किल नहीं बन पाएगा, सेमी सर्किल बनाएगा। तो पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन 2 इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी ये हो जाए। तो आप देखिए वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है इसके, जब वो रीजन 3 में जा पा रहा है। अगर वो रीजन 3 में नहीं जा पाएगा, इसका मतलब है कि रेडियस बराबर अगर हम एल ले ले, तो इस केस में क्या होगा कि ये इसको टच करते हुए जस्ट टर्न आउट ले लेगा बैक साइड में, और ये सेमी सर्किल को कवर करेगा। तो रेडियस क्या होता है, एम वी बाय क्यू बी, और इसको अगर हम एल के बराबर कर देते हैं, दिस इज लिमिटिंग कंडीशन व्हेन की ये जो रेडियस और जो लेंथ है ये इक्वेट कर ले, तो वही आ जाएगा आपको क्यू बी एल डिवाइडेड बाय एम। अगर ये वैल्यू हम वेलोसिटी का रख लेते हैं, तो जो ये पाथ लेंथ बनाएगा क्यू बी एल बाय एम कर लेते हैं, तो इस केस में जो इसका पाथ लेंथ होगा वो सेमी सर्कुलर होगा। दैट मीन्स कि इस केस में जो है इसका पाथ लेंथ पार्टिकल 2 रीजन में जो होगा ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, दैट इज सेमी सर्कुलर, तो ये सही है। और तीसरा चौथा है टाइम स्पेंट इन रीजन 2 is same for any velocity v as long as the particle return to region 1। तो दैट मीन्स कि जैसे टाइम टू ये टाइम स्पेंड जो हो रहा है रीजन 2 में, यानी इसमें टी टाइम अगर स्पेंड हो रहा होगा, तो जिस समय अगर ये मैक्सिमम पाथ लेंथ को एक्वायर कर रहा होगा, इसी में मैक्सिमम टाइम इसका स्पेंड हो रहा होगा। तो इस वाले कंडीशन में इसका जो टाइम स्पेंड हो रहा होगा वो टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2 होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज 2 पाई एम बाय क्यू बी, और उसका आधा कर देंगे, तो यानी कि टाइम स्पेंड जो हो रहा है इसका मैक्सिमम ये पाई एम बाय क्यू बी हो रहा है, उस केस में हो रहा है जिस केस में ये मैक्सिमम पाथ लेंथ को एक्वायर कर रहा है। एंड दैट मीन्स कि एल बराबर आर कंडीशन। तो टाइम स्पेंट इन रीजन 2 is same for any velocity v as long as the particle returns to region 1। तो जैसे ही पार्टिकल रीजन 1 में आ जाएगा, यानी 2 में जो वो मैक्सिमम ये टाइम स्पेंड कर रहा होगा, ये तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो टाइम हम जानते हैं कि टाइम जो स्पेंड होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। टाइम पीरियड जब भी आप रिलेट करोगे तो वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ओमेगा वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। यानी वेलोसिटी फैक्टर को अगर आप चेंज करते हैं तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पे। तो इसीलिए यहाँ पे सेम फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एज, जो वेलोसिटी का आप कोई भी वैल्यू रखोगे उससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, तो यानी कि ए सी एंड डी दिस इज करेक्ट। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपको ओल्ड क्वेश्चंस थे जो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड, a moving charge particle in the magnetic field region. The next video will be having based on this continuation only. So it will be only in this chapter we are considering here currently advanced kind of question which may be helpful for you for the writing JEE Main in the January session or April session, and maybe for advance also, because I am discussing all situation and the